yes for you can hear me, no for you cannot hear me. कोई यूट्यूब पे भी चेक कर लो. यस यस गुड. ये आवाज आ रही नहीं आ रही है? यूट्यूब पे भी चेक कर लो, मतलब जो लाइव जाते हैं रिकॉर्डिंग फॉर रिकॉर्डिंग से नॉट. ओके, लेट्स नॉट वेट मच, क्योंकि शुरू करते हैं विद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. सो एवरीवन, प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? ठीक है, माय एवरीडे माय क्वेश्चन विल बी द सेम. आर वी प्रैक्टिसिंग? प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिसिंग, yes, no. Yes, no. Are we practicing or not? ठीक है, we need to practice at any cost. अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम मतलब सीखेंगे ही नहीं. Like all my efforts will go to vain. So are we practicing or not? Honest answers. No, so no. ठीक है, no problem. But at least we are honest to ourselves. Quick guys, silence meaning also no. Are we practicing or not? अच्छा कोई भी नहीं, आगे नहीं जा पाएंगे भाई. If you won't answer. Okay, someone is practicing. Someone also is practicing. Others, others. I will assume you are not practicing, which is not good thing. Okay, so let me practice. Let me revise to this quickly. Okay, so हमने कल देखा. What we have seen is operators and integers. सबसे पहले right? Integers हमने देखा and operators देखा. So what is integers? So integers meaning either whole numbers which are from positive to negative, or decimal format numbers which are again from positive to negative with the decimals, and real or imaginary parts which is complex numbers are integers. Okay, so integers have three types: integers, float, basically numeric data type have three types: integer, float, and complex. Integers are like this, these look like this. Float are the ones which are with decimals. Okay, and the third is complex, which comes with a real part and an imaginary part. Okay, it comes in real part and imaginary part. So someone asked me why we are doing this in a English lecture, but why we can't directly directly go to हिंदी में या फिर मराठी में, right? So the point is we need to give interview in English. That's that. Okay, so wherever it becomes the topic becomes somewhat complex, I will try to uh, like explain in Hindi also. Okay. Okay. Coming back here, that then we saw this type function. So type function will do what? It will tell you what's the type of your data type. Okay. So this looks like an integer. Okay. So it gave integer. This is a decimal thing. So it looks like a float. So it's a float. And this has a real and imaginary part, meaning uh, this is a complex number. Okay, so if you want to have one second, let me run something. Um, where are we? Okay, okay, coming back. So yeah,
Alright, I have some friends for you. Okay, I have some friends for you here. They will also be teaching with us. Okay, so yes, then we learned about ABS, absolute function. It will give you what? A value, okay, a value of your complex number. Okay, a value of your complex number. So whichever complex number we are seeing, if you want to know what's the value of that complex number, you can just use this ABS. Okay, you can just use this ABS and it will give you the number, or like what's the value of this complex number is. Okay, we can try different values. So I will let you experiment with this file. Go on, like I share these files on the group, or you can also go on the GitHub and try experimenting with, try to know with different imaginary or complex values. Okay, use ABS function to know their values. Then we saw how we can convert any data type into another data type. So we saw this float to get converted into an integer. How we did it? We use this int operator or int function, and then we, in the braces, we just added a float value, and then we wanted this float value to get converted into what? Integer. Similarly, we did this. Similarly, for any integer value, we change to a float. Okay, we cannot change any complex value to an integer or float. Okay, we cannot change the integer to a float. Okay, and but we can change any integer or a float value to a complex value. Okay, using this complex function. Okay, then here we can see we can even change any float but almost a number value into a integer. Okay, and similarly we can do for the float as well. Then we saw some different operators, that is arithmetic operators such as plus, which is addition, minus, this subtraction, cross or asterisk, which is for multiplication, and okay, these guys are also saying practice Python, guys. Okay, so you need to practice Python. काफी लोग आ गए यहाँ पर. You go, guys. अरे, ठीक है. So coming back again. So this is a division. Okay, this is used for division. Double slash is used for floor division. Okay, double slash is used for floor division. Exponents or power are used for getting the square values or cube values like it. Okay, then this modulus or remainder. This is we can use this ampersand to do it. So now if you want to do the addition, okay, this is the example of addition 5 plus 5. This plus is our arithmetic operator. Similarly, minus is our arithmetic or subtraction operator. Multiplication 5 into 5, division 23 divided by 2, floor division 23 double slash 2 will give you answer as 11. Similarly, for modulus, like whenever you want to kind of have you know Mm, so remainder is we are going to use this in maybe to calculate even number or odd number. Most of the time, even interviewers ask, for calculating the even and odd numbers. So there you use this remainder. So you'll get to know. Now then we can also know, if you use this double asterisk to, get the square values, cube square root values, and cube root values. Okay, square root values and cube root values like this. Then we also saw some assignment operators. Okay, what are assignment operators? Equals to, plus equals to, minus equals to, multiplication equals to, division equals to, floor division equals to, power equals to, modulus equals to. Okay, what is equals to? It is used to assign a value. That is why it is called as assignment operator. Okay, so a is equals to 10. Similarly, a is equals to a plus 10. So here we can see हम a में we are adding 10 inside a and then
storing in a. Okay, so a, which was 10 earlier, we added a 10, it became 20. So similarly, we can, instead of writing like this, we can also write like this: a plus equals to 10. These two statements are exactly same. Okay, these two statements are exactly same. Okay, and similarly, mm, b equals to, we took 100, then b equals to b minus 5, b equals to b minus 5, and uh, this statement and this statement, which is b minus equals to 5, is exactly same. Okay, so similarly we did it for multiplication, so you can try for with division, floor division, modulus, and so on. Okay, then we saw some logical operators, and or not. Okay, and कब consider करना है, जब both of the values should be true. ठीक है, a equals to 5, b equals to 11, a equals to 5, b equals to 11. अगर जब आप and use करते हो, when you use and, both of the values should be true. If you use or, any of the value, any of the one value can be true. Okay, so we did a practice yesterday, nice, with nice examples. So you did a good job yesterday. Okay, and then we saw some. Okay, that was it. So let's continue with these three operators, and then we can go move for if and else statement. ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर. ओके, तो यहाँ तक जो हमने कल तक सीखा, so this was just a revision. So whatever we learned till yesterday, is there any confusion? Is there any confusion? Slightest of the doubt? Or if this is clear, type clear in the comments, guys. If this is clear, type clear in the comments. अगर आपको समझ में आया तो. Arupam Saha from YouTube says hi, hello. Clear, 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 cool, clear. Okay, कल तक का समझ में आएगा. जो कल नहीं थे, try to be attentive, try to be there every day, so that अगर आप एक भी लेक्चर मिस करोगे, अरे मेरा भाई पढ़ गया, so try to be there. Do not मिस द लेक्चर्स. अगर आप मिस करोगे तो क्या होगा कि अगला लेक्चर ही नहीं समझ में आएगा, और उसके बाद का लेक्चर नहीं समझ में आएगा, और फिर समझेगा नहीं तो यू विल फील टायर्ड व्हेन यू विल अटेंड द लेक्चर्स. व्हेन यू फील टायर्ड, then you will feel कि अरे this is useless, or this is not meant for me, and you will miss very great thing. I can say this because AI will be everywhere. ठीक है, AI will be everywhere in coming 2-3 years. It is already there. अगर आप कोई वीडियो बनाना है, आपको कोई ऑडियो बनाना है, आपको कोई ऐसे लिखना है, मेल लिखना है, everything, even writing a code, like start coding or generate with AI. Okay, you can do it here as well, right? So try to be there, guys. ठीक है, try to like be the part of this AI and all stuff. So don't miss this. प्रैक्टिस करो. ठीक है, लेट्स लर्न मेंबरशिप ऑपरेटर एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से हैं? तो फर्स्ट इज एंड इन एंड नॉट इन. ठीक है, so these are membership operators. Okay, एक एग्जांपल दे देता हूँ. लेट्स से आई एम सेइंग my list. Okay, my list, so you don't have to worry about this. आया था यार. Okay, like this, 1 2 3 4 5 6 7 9 8. ठीक है, I've created a list. तो I'm just, this is a list, just समझ लो, बाकी बाद में तो हम जब लिस्ट पढ़ेंगे you'll get to know all this. ठीक है, you will get to know कि लिस्ट क्या है, एंड हम क्या कर रहे हैं लिस्ट को समझने के लिए. ठीक है, so now we are trying to learn in operator. ठीक है, in operator. So in operator क्या है? So if you say if
2 in my list, okay, 2 in my list, print 2 is present, okay, print 2 is present, 2 is present, else else क्या प्रिंट करना है, हाँ 2 is not present, ठीक है, 2 is not present। हमने क्या कहा, माई लिस्ट के अंदर, किसके अंदर, ये लिस्ट के अंदर, इनसाइड दिस लिस्ट इफ 2 is present, अब इफ 2 in my list, तो हमने ये इन ऑपरेटर यूज किया है, ओके, व्हाट वी हैव यूज, इन ऑपरेटर। हम क्या कह रहे हैं, अगर दो, इफ, जस्ट इंग्लिश में पढ़ लो इसको, हमारा हिंदी में पढ़ लो, अगर दो इस लिस्ट में है तो ये प्रिंट कर दो, अदरवाइज ये प्रिंट कर दो, अदरवाइज मीनिंग जब टू नहीं रहेगा, तो कैन यू सी टू, यस आई कैन सी, so what should be get executed, this, okay, because this condition will be true, okay, this condition will be true। अगर ये false रही तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। so let me run this, so 2 is present, ठीक है। तो हमने इन ऑपरेटर यूज किया, ओके, वी यूज्ड इन ऑपरेटर। सिमिलर एग्जांपल फॉर नॉट इन लेते हैं, ठीक है। इफ टू नॉट इन, इफ टू नॉट इन दिस ऑपरेटर, तो प्रेजेंट ये करो या फिर ये करो, अच्छा ये बोलना पड़ेगा, टू इज नॉट प्रेजेंट, टू इज प्रेजेंट। हम क्या करें, इफ टू नॉट इन माई लिस्ट, इन माई लिस्ट, ये मेरे लिस्ट के अंदर अगर दो प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रिंट करना, तो हियर व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम फॉल्स बिकॉज टू इज देयर एक्चुअली, ठीक है। अगर दो नहीं रहता तो ये प्रिंट हो जाता, लेकिन टू है इसलिए ये प्रिंट होगा, ठीक है। एक अपोजिट एग्जांपल दे देते हैं, एक अपोजिट एग्जांपल देते हैं जहां पर ये टू ही निकाल देंगे हम, ठीक है, ये टू ही निकाल देंगे हम। सो नाउ व्हाट विल हैपन, हम क्या कह रहे हैं, ये मेरी माई लिस्ट है, दिस इज माई लिस्ट, हम कह रहे हैं इफ टू इज नॉट प्रेजेंट, हम कह रहे हैं इफ टू इज नॉट प्रेजेंट इन माई लिस्ट, अभी है क्या, इट इज नॉट देयर, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाना चाहिए। If I run this, you can say 2 is not present. This got printed. This got executed basically. Okay, this got executed basically. So this is what these are what the membership operators. Okay, these are what the membership operators. उसके बाद कुछ ऑपरेटर्स है जैसे ये वाले, कौन से वाले, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से हैं, सबसे पहले तो वेरी फर्स्ट ऑपरेटर इज, इसमें लिखते हैं वेरी फर्स्ट या फिर इसी के अंदर लिखते हैं, इक्वल्स टू, इसको कहते हैं भी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ठीक है। और कौन सा ऑपरेटर है, ये होता है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ओके, इक्वल्स टू रहेगा हर बार सामने और ये रहेगा नॉट इक्वल्स टू। उसके बाद एक होता है ग्रेटर देन, ओके, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, लेस देन, और क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और एक होता है लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, और एक होता है लेस देन और equals to, okay, less than or equals to, so these are your ऐसे क्यों दिख रहा है ये, ठीक है, ये इसको मिस कर, मतलब इसको मत कंसिडर करना, if I run this it should look like this, equals to, not equals to, greater than, less than, greater than or equals to, less than or equals to, okay, less than or equals to, so these are some comparison operators, okay, these are some comparison operators, these operators will always return
always always return true or false. ठीक है, ये बताएंगे कि whether these are equals to or not equals to. So if you say 10 is equals to 10, ठीक है, अगर आप कहोगे कि क्या 10 इक्वल्स टू है 10 से, so ये कहेंगे yes you are right. ठीक है, it will say yes you are right. अगर सिमिलरली आप ऐसे कहते हो कि क्या 10 इक्वल्स टू 10 है, so it will say what? No, it is not. Right? No, it is not. So it will always return what? True or false. ठीक है, हमने इक्वल्स टू के लिए एग्जांपल देख लिया, फर्स्ट इक्वल्स टू के लिए एग्जांपल देख लिया. ओके, अभी सेकंड के लिए देखते हैं which is not equals to. So for example 10 is not equals to 10 or 12. ठीक है, so it should say what? It should say true. Is that right? Because 10 is not equals to true. Okay, 10 is not equals to true. So ऐसे मतलब अनगिनत एग्जाम्पल्स वी कैन टॉक. ओके, सो अभी इसका आंसर दे दो मुझे. क्या 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 20 है? ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, वट एवर यू थिंक. ओके, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू थिंक. विवेक से फॉल्स. क्या 10 20 से छोटा है? क्या 10 20 से छोटा है और 20? देयर इज और. क्या, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? चैतन्य से ट्रू. चैतन्य से ट्रू. ही आल्सो सेज ट्रू. क्या ट्रू फॉल्स तो नहीं आना चाहिए, देयर विल बी ओनली वन आंसर. ठीक है, so let's move ahead. So the answer is true. ठीक है, because we are saying or. ठीक है, less than or equals to. और मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक चीज रहनी चाहिए, so it should be true. Okay, it should be true. Next is, we can also say like this. A is equals to एक वेरिएबल ले रहा हूँ, let's say 35 is my variable. Okay, A is my 35, right? And I am saying, what I am saying, A is not equals to 33. ठीक है, a is not equals to 33. तो इसका क्विकली आंसर दे सकते हो. आई विल जस्ट काउंट. क्विकली आंसर दो. ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? क्विकली. someone says true. Okay, uh, if she has said true for this, true. Okay, so the answer is, I don't know. इसको पूछते हैं. Yes, the answer is true. So congratulations guys. ठीक है, congratulations, the answer is true. Okay, so moving ahead. So these are the operators. Okay, these are the operators. इसको like ऐसे भी कह सकते हैं. A is greater than 30 30 33. क्या A greater than 33 है? It should be greater than 33, right? So it should come true. Similar example में ऐसे दे सकता है, less than 33 है क्या? It will say false, right? So you are welcome to play with this. Okay, you are welcome to play with these examples. So this concludes your comparison operator. Okay, तो हमने अभी के अभी कौन सी दो चीजें सीखी. एक सीखी मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें इन एंड नॉट इन होता है. ओके, इन एंड नॉट इन होता है. ओके, जिसमें यू जस्ट चेक वेदर ये है या नहीं है. है तो ट्रू, नहीं है तो नॉट ट्रू. ओके, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमने देखा ऑपरेटर्स में हमने देखा इक्वल्स टू देखा, नॉट इक्वल्स टू देखा, लेस देन और इक्वल्स टू देखा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड सो ऑन. ठीक है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड सो ऑन. एक लास्ट वाला देखते हैं, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर. ओके, व्हाट्स द नेम? आइडेंटिटी ऑपरेटर. तो ये तो इनसे भी ज्यादा सिंपल है. ओके, दिस इज सिंपलर देन एनी अदर. ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू. अरे बहुत सारे लोग आ गए गाइस. ये कह रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, तो दोज हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो. So let's try and understand identity operator. Okay, let's try and understand identity operator. Yeah.
Let's try and understand identity operator. So I am taking a equals to 10, b equals to, for example, 20. Okay, b equals to 20. So now I will say if a is b, okay, if a is b, ऐसे कुछ लिख दिया मैंने. So is my identity operator. Okay, is my identity operator. So there are two operators. First is the, second is क्या है? Not, is not, is not. ठीक है. So these are two operators. ये similar है in and not in से. ठीक है. In and not in से similar. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? If A is B, लेकिन यहाँ पर A is not B, so it will return what? False. ठीक है. It should return false. Okay. और एक एग्जांपल देता हूँ. A equals to 20, B equals to 20, and I'm saying if A is B, okay, if A is B, then print करो true, otherwise false. ठीक है. इस बार हम क्या कहते हैं? We are saying अगर A ही B है, राइट, हम क्या कह रहे हैं? A ही B है, गंगाधर ही शक्तिमान है, तो ट्रू कर दो. ठीक है. अगर गंगाधर ही शक्तिमान है तो ट्रू कर दो. सो यू कैन से यस, इट्स ट्रू, राइट. सिमिलरली नॉट इन के लिए कैसे रहेगा? नॉट इन के लिए कैसे रहेगा? इज नॉट और इज नॉट. ठीक है. तो ये क्यों आया? तो आई एम जस्ट मेकिंग दिस 21. ठीक है. तो a इज 20, b इज 21. हम कह रहे हैं इफ a इज नॉट b, अगर a इज नॉट b है तो ये प्रिंट कर दो, अदरवाइज ये प्रिंट कर दो. So what will happen? This will get printed. Okay, this will get printed. So these are some remaining operators. Okay, कल के ये तीन operators बचे थे. So the first is membership, third is comparison, sorry, second is comparison, and third is identity. So is this clear or are there any confusion here? अगर confusion है, confusion क्या रहेगा? Confusion clear डाल दो अगर confusion है. ओके, अदरवाइज क्लियर डाल दो. राइट. क्लियर क्लियर क्लियर, बढ़िया है. ठीक है. इफ दिस इज क्लियर, राइट, इफ दिस इज क्लियर, तो आगे बहुत मजा आने वाला है गाइस, क्योंकि आगे हम सीखने वाले हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स. ठीक है. टुडे इज मेन टॉपिक. व्हाट्स द टॉपिक इज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट. So let me just create a new notebook. Okay. और दिस इज द, यहाँ से आपको मजा आने लगेगा बिकॉज दिस हैज सम लॉजिक. यहाँ से सम लॉजिकल रहेगा. अभी तक तो हम बस सीख रहे हैं कि ये क्या है वो क्या है. बट इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन. ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन. तो इसको एक हेडिंग दे देते हैं, इफ एंड एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट. अभी तक हमने एक्चुअली कुछ एग्जांपल भी देख लिए हैं ऑलरेडी. ये है इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स. ठीक है. अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से सीखते हैं. ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से सीखते हैं. सबसे पहले एक एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल. एग्जांपल क्या है? एक मैं रॉ वेरिएबल ले रहा हूँ, उसके अंदर आई विल जस्ट राइट लाइक दिस, आई विल आई विल वर्क एज ए AI इंजीनियर. ठीक है. ये एक स्टेटमेंट है. दिस इज अ स्टेटमेंट. ठीक है. स्टेटमेंट बोलेगा वेरिएबल ही रहे. ठीक है. दिस इज अ वेरिएबल और एनीथिंग. देन यू विल से इफ AI इन वेरिएबल, AI इन वेर. ठीक है. ये इन एक ऑपरेटर हमने अभी देखा. ठीक है. इन एक ऑपरेटर हमने अभी देखा. इफ AI in a variable or this variable, then
you can say print AI is present, ऐसे कुछ लिख सकते हो, राइट? और AI is present in variable and AI is not present in variable. So हमने क्या, what we are doing here, we are doing here two things. सबसे पहले हम if दे रहे हैं. So in order to understand this, you need to understand how Python works. ठीक है? Python will run the code line by line. ठीक है? Python will run the code line by line. First ये code run होगा. ठीक है? First ये code run होगा. Since this is a comment, ठीक है? कमेंट को भी समझ देना, जिसके भी आगे ये हैशटैग होगा, जिसके भी आगे ये हैश होगा, that will be skipped by Python. Okay, that will be skipped by Python. Why this hash is used? To write comments. Okay, to write comments. या फिर let's say you are working in an industry, right? And if you go there as a new joiner, right? So there will be an employees जो आपसे पहले जिन्होंने काम किया होगा, उन्होंने भी कुछ कोड लिखे होंगे, राइट? दे मे हैव आल्सो रिटन सम कोड्स. तो वो क्या करेंगे, ऐसी कमेंट्स छोड़ के जाएंगे. दे विल राइट सम कोड. So let me just write one code here. Write a code with comments in Python. ठीक है? ऐसे ही मैं कुछ रैंडमली एक कोड जनरेट करने के लिए बोल रहा हूँ. तो यू कैन सी देयर आर सम कमेंट्स कि यहाँ पर इन्होंने एक हैशटैग लगाया है. So this will get skipped. This will get skipped. This will get skipped. But what this AI is doing, it is writing some comments in order to you understand this. ये क्या comments है, ठीक है? What is happening in this code? यहाँ पर बोल रहा है कि ask the user to input a non-negative integer. ठीक है? हमने ये देखा है शायद, input number and integer, right? अभी ये ऑपरेटर्स देखे, इफ एंड एल्स अभी हम देखने वाले हैं, राइट? तो एवरीथिंग इज इतना ही है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं पाइथन में. ठीक, ये बाकी चीजें मैं बता दूंगा ये और ये. तो दीज आर कमेंट्स. माय क्वेश्चन हियर वाज कि ये इनको कमेंट्स कहते हैं. ठीक है? तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड मेक अ एग्जांपल सो दैट आगे जाके आप इसको समझ पाएंगे. ठीक है? तो दीज आर कमेंट्स. इसको डॉक स्ट्रिंग कहते हैं. ठीक है? इसको डॉक स्ट्रिंग कहते हैं. कहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखता हूँ, डॉग स्ट्रिंग. ओके, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे. अभी के लिए इतना देखो कि इफ एंड एल्स है. ठीक है? इफ एंड एल्स. ठीक है? और ये कमेंट्स है. आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दीज आर कमेंट्स. इट विल बी स्किप्ड, पाइथन इसको समझ नहीं पाएगा. ठीक है? कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल एग्जांपल, सबसे पहले पाइथन ये लाइन चलाएगा जो कि उसको मतलब वो स्किप हो जाएगी. देन इट विल रन दिस लाइन, यहाँ पर कुछ भी नहीं. देन इट विल रन दिस लाइन. So this string will get stored into this variable. Then it will run this line. Okay, this line. So line by line Python work करता है. एक line, second line, third line, fourth line, fifth line. Okay. So when it will be at fifth line, we are saying if AI in variable. Okay. हम उसको बोल रहे हैं कि if अगर AI है इन इस वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर, this is a container, right? This is a container which is storing some value और which is storing some data. तो हम कह रहे हैं कि अगर ये AI वर्ड इसके अंदर है, which is there, okay, तो ये प्रिंट कर दो. Okay, so whenever I am typing enter here, I am coming here, like you can see. Okay, it means ये जो प्रिंट है या ये जो लाइन है इस इफ के अंदर है. ओके, इफ के अंदर है. तो बेसिकली अगर ये ट्रू होता है, इफ दिस कंडीशन गेट्स ट्रू, देन ओनली दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूट. ओके, समझने की कोशिश करो. इफ दिस कंडीशन विल गेट ट्रू, देन ओनली दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड. अदरवाइज अगर ये ट्रू नहीं रही, इफ दिस इज फॉल्स, इफ दिस इज फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी. मीनिंग ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसके अंदर ये प्रिंट है. ठीक है? द नेक्स्ट प्रिंट.
ओके, सो इफ दिस इज ट्रू देन ये लाइन या ये कोड वर्क करेगा, इफ दिस इज फॉल्स तो ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ओके, सो आई एम रनिंग दिस वन ऑफ नाउ। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, इफ अगर ए आई इस वेरिएबल के अंदर है तो इसको प्रिंट करवा दो। आई एम रनिंग दिस, ए आई इज प्रेजेंट इन वेरिएबल, ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी के लिए ये ट्रू है। सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम लिखेंगे जेन ए आई, ठीक है, जेन ए आई। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। ठीक है, हम कह रहे इफ जेन ए आई इन वेरिएबल, इसके अंदर है क्या, हम पूछ रहे हैं पाइथन को कि चेक करो क्या ये जेन ए आई इस वेरिएबल के अंदर है। तो ये बोलेगा अरे नहीं है भाई, ये तो मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, इफ दिस इज फॉल्स, ऑटोमेटिकली ये कोड ब्लॉक नहीं चलेगा। what will run is this, well, this will run, else will run. Okay, else AI, or you can say gen AI, gen AI, okay. Generative AI is not present in variable this can run this, it will say generative AI, basically ये नहीं, ये चल गया, ये नहीं चला। okay, so ये क्या है, it is just if and else, इतना ही बोल सकते हैं कि this or that। ओके, व्हाट इट इज, दिस और दैट। ठीक है, वाइट बोर्ड में अगर समझने की कोशिश करें हम, अ, हम्म, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ठीक है, इसके अंदर ए आई लिखा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। तो हम पाइथन को क्या बोल रहे हैं कि भाई चेक करो, ठीक है, चेक करो ए आई किधर है। ठीक है, इफ इधर है, अगर इधर नहीं है तो इधर होगा, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली इधर नहीं है तो इधर होगा, ऐसे पकड़ लो। ठीक है, हम पाइथन के क्या बोल रहे हैं कि इफ चेक कर लेना बस, दिस इज अ कंडीशन। ठीक है, इफ इज अ कंडीशन, इफ ये पहले चेक कर लेना यहाँ पर है क्या, नहीं है, ओके, देन यहाँ पर तो होगा ही होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लो। So I will just give you more examples. You will understand more and more and more. Okay? You will understand more and more and more. So before that, let me just give you what few mm, notes. Okay? Few notes. तो अभी आप देख रहे होंगे कि सब कुछ कोड हमारे बड़े हो गए। ठीक है, पहले हम बस सिंगल लाइनर देख रहे थे, जैसे ये ऐसे छोटे छोटे देख रहे थे। अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया कोड। ठीक है, तो इट इज लाइक यू आर प्रोग्रेसिंग इन लाइक आई गेस लेक्चर, दिस इज आवर लेक्चर 5। तो लेक्चर 5 में ही हम काफी आगे आ गए। ठीक है, तो दिस इज अ गुड प्रोग्रेस। तो सम नोट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर decision making। okay, if else statements are decision making statements। ठीक है, if else statement are decision making statements, ये क्यों आ that execute a specific block of code depending upon the values of particular condition। इसको छोड़ ही दो। ठीक है, इतना ही समझ, इतना ही समझ। हम थोड़ा सिंपल सिंपल करते गए। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स आर क्या है, आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सेकेंड थिंग हम लिखेंगे, सेकेंड थिंग लिखेंगे, in case of or in case when we have only if and else। ठीक है, if and else, if and else की क्यों कहा मैंने ओनली, क्योंकि और एक चीज होती है जो होती है एलिफ। ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इन केस ऑफ इफ ओनली इफ एंड एल्स। ठीक है, इन केस ऑफ ओनली इफ एंड एल्स, इफ if is true, if is true, then if block uh, code will get executed। okay, executed। otherwise क्या होगा, else block code will get executed। ठीक है, अभी हमने यही पढ़ा, राइट।
अगर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर इफ ब्लॉक इज ट्रू, अगर ये इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इफ ब्लॉक विल वर्क और रन, ठीक है, विल गेट एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये फॉल्स रहा तो क्या होगा, दिस एल्स ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। ओके, दिस इज एल्स ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया? इफ यू गॉट दिस, इफ यू गॉट इट, टाइप जीटी इन द कमेंट। यहाँ तक समझ में आया? Webber says, "Hi bro, I am a beginner. How to start coding journey? Hi bro, I am beginner. Hi bro, I want to learn coding. Should I start C language?" For Weber, how to start? YouTube पे recordings हैं, वहाँ पर जाके you can start. ये this is a fifth lecture only Python का, तो वहाँ पर जाके आप 5 lecture complete कर लो, and then you can join this our WhatsApp group. कोडर ऐसे सर्च कर लेना और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये फर्स्ट ही चैनल है, यहाँ पर पोस्ट के अंदर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन दिस लिंक एंड यू कैन लर्न विद अस। एंड समवन एल्स वांटेड टू से समथिंग व्हिच वाज, शायद शायद से, हाँ भाई, सी लैंग्वेज भी बढ़िया है। सी लैंग्वेज इज ऑल्सो गुड टू स्टार्ट। ओके, so GT, can you share the link here? Here, here, इस WhatsApp लिंक सिंपल रहेगा गाइस, बस ऐसे कॉपी भी कर लोगे ना, आई थिंक नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू क्लिक। ठीक है, ऑलराइट, गॉट इट एंड ग्रेट, गुड। ये अगर आपको समझ में आया है तो आपने तो मतलब आधी जंग जीत ली। ठीक है, आधी जंग मीनिंग इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, फैंस एल स्टेटमेंट है, बस इसका एक छोटा सा भाई है, छोटा सा भाई बोल दो, या फिर इट्स लाइक इसके, इनका एक सिबलिंग है, ऐसे समझते हैं। ठीक है, इट हैज अ सिबलिंग। ठीक है, इनका नाम क्या है, एलिफ। एक होता है इफ, ठीक है, एक क्या होता है इफ, एक है एक है एल्स। ठीक है, इन दोनों का एक इन दोनों का एक कंबाइन भाई है एलिफ। ठीक है, एल्स एंड इफ का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एल्स एंड इफ का कॉम्बिनेशन। तो इनको साथ में रहना ही पसंद है। ऑल दीज थ्री लाइक टू स्टे टुगेदर। ओके, ऑल दीज थ्री लाइक टू स्टे टुगेदर। ठीक है, सिंपल है। तो ये चीज तो पता चल गई कि इनका कोई तो भाई है और वो साथ में रहने की उनकी इच्छा है। So let's try with one example. Let's say a is equals to 10, okay, and b is equals to what? B is equals to लेते हैं 20, okay. So if, फिर से मैंने कंडीशन दे दी पाइथन को, पाइथन बोल रहा है भाई क्यों दे रहा है मुझे कंडीशन, आई डोंट लाइक दिस डिसीजन मेकिंग बट यू हैव टू। ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b, हम क्या कह रहे हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पर और एक कंडीशन दे दी। ये पता है कौन सा ऑपरेटर है, दिस इज सम ऑपरेटर जो हमने अभी अभी पढ़ा। कौन सा रहेगा, ये वाले, दिस दिस राइट, इनको कहते हैं व्हाट, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर इसीलिए हमने सीखे क्योंकि इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, हमने कहा कि दो वेरिएबल है, उसके अंदर हमने कहा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट कर दो क्या, इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट कर दो। ठीक है, और एल्स एल्स कर दो बी इज ग्रेटर। ठीक है, अगर ये ए इज ग्रेटर देन बी है तो ये कर दो, अदरवाइज ये कर दो। हमने क्या देखा, ए इज 10, बी इज 20, यहाँ पर तो ये नहीं दिख रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट हो जाएगा। ओके, बट एक और कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, ऐसे भी तो वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, ये कंडीशन में क्या होगा, दोनों भी इतने वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, ए भी ग्रेटर देन नहीं है, बी भी ग्रेटर नहीं है, तो वहां पर आता है उनका
तीसरा भाई वो होता है, वो है अलिफ। ठीक है, अलिफ। अलिफ क्या बोलेगा? इफ अलिफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करो ए इज इक्वल्स टू बी। ओके, प्रिंट करो ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये क्यों आया पिक्चर में? क्योंकि ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, देयर कैन बी थर्ड थर्ड आउटकम। हम अब तक कितने आउटकम देख रहे थे, यहाँ पर भी आप देखो दो ही आउटकम है, इफ एंड एल्स, इफ एंड एल्स, इफ एंड एल्स एंड इफ एंड एल्स। ओके, अगर ये तो ये प्रिंट करो, अगर ये नहीं, इफ दिस इज नॉट, तो ऑटोमेटिकली ये प्रिंट कर दो। ठीक है, बट यहाँ पर ये, अगर ये है तो ये प्रिंट करो, अगर ये नहीं तो ऑटोमेटिकली ये प्रिंट तो नहीं होगा अभी, यहाँ पर भी चेक होगा। ठीक है, इफ आई रन दिस, इट शुड प्रिंट दिस, ए इज इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, ए एंड बी आर इक्वल। so elif will always be after if. okay, elif will always be equal after elif। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। अभी इसमें क्या है, ये जो इफ है ना, ये जो इफ है ना, ये इसको अकेला भी रहना पसंद है। ठीक है, इफ कैन, इफ कैन स्टे, इफ कैन स्टे अलोन। ठीक है, इफ कैन स्टे अलोन। ठीक है, आ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अगर मैं सिंपली ऐसे रन कर दूं, ये रन कर दूं, तो ये चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 11 कर दूं, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये केस वैलिड नहीं है, इफ बी इज ग्रेटर देन 11 विच इज दिस इज नॉट वैलिड, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, राइट, बिकॉज हमने एल्स लगाया ही नहीं। तो मीनिंग ये है कि इफ इज समथिंग विच कैन रन अलोन। ठीक है, विच कैन रन अलोन। ओके, सो इफ, हम कुछ ऐसे लिखते हैं, इफ कैन रन अलोन एज वेल। ठीक है, इफ कैन रन अलोन एज वेल। और क्या है, और क्या है, अगर मैं ऐसे कर दूं कि भाई इफ को पसंद नहीं है हमारे साथ रहना, बोल रहा है एलिफ एंड एल्स, क्या बोल रहा है, अगर हमारे साथ पसंद नहीं है तो हम तो चलो। ठीक है, बट इफ को पता है इफ आई एम नॉट देयर, तो ये एरर देंगे। ठीक है, ये एरर देंगे। तो ये अकेला रह सकता है, लेकिन ये दोनों अकेले नहीं जा सकते, दे हैव टू कम विद दिस। ये बड़ा भाई पकड़ लो। ठीक है, दिस इज इट। तो हम कैसे क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एल इफ एंड एल्स आर आर इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड। तो इसको वैलिड कर देते हैं। ठीक है, वैलिड। और एक स्टेटमेंट होती है, और एक जगह ये होता है कि ये तो हमने देख लिया, ये भी लिख देता है। ठीक है, इफ एलिफ एंड एल्स आर वैलिड। ठीक है, आर वैलिड, ये तीनों वैलिड है, राइट, ये तीनों वैलिड है, बराबर। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ को दे दिया, ठीक है, फिर एल्स दे दिया, फिर एलिफ दे दिया, तो इसका क्या होगा? हम कैसे बात कर रहे हैं कि इफ दे दिया, एल्स दे दिया, कुछ यहाँ पर, ठीक है, एल्स दे दिया एंड देन इलिफ दे दिया, तो ये भी नहीं चलेगा। यू कैन यहाँ पर जब भी रेड लाइंस आएगी ना, समझ लेना एरर आएगा। ठीक है, एरर आएगा। तो ये ऐसे भी नहीं चलेगा। okay, दिस विल नॉट वर्क लाइक दिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड। ओके, इसको हम बोलेंगे इनवैलिड। क्यों? इफ एल्स के बाद एलिफ नहीं आ सकता। ये बीच का भाई है, 2 नंबर का भाई, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, ये बीच वाला। ठीक है, ये बीच वाला। और एक कंडीशन है जो है इफ एल्स एल्स, तो ये कंडीशन भी इनवैलिड है गाइस। ठीक है, दिस कंडीशन इज आल्सो इनवैलिड। अगर मैं यहीं पे कुछ यहाँ पर भी एल्स लिख देता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड कंडीशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। तो वैलिड कौन सी है, वैलिड कौन सी है? एक तो ये वाली, बस इफ चला दो। ठीक है, बस इफ चला दो, ये वैलिड है। व्हाट इज द सेकंड वैलिड कंडीशन? इफ चला दो एंड एल्स चला दो, ये भी वैलिड कंडीशन है। ठीक है, और इफ चला लो, एल्स एलिफ चला दो, एल्स चला दो, तो ये भी वैलिड कंडीशन। ठीक है, ये भी वैलिड कंडीशन।
दिस। ओके, सो हमें तीन वैलिड वैलिड फॉर्मेट पता चल गया, तीन इनवैलिड फॉर्मेट भी पता चल गया। कुछ भी याद रखो, बट मैं बोलूंगा बस इसको याद रखो, ठीक है। इफ अकेला चल जाता है, इफ एंड एल्स अकेला चल जाता है, इफ एलिफ एल्स, ये तीनों सीक्वेंस में चल जाते हैं। ओके, इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स, ये तीनों भी सीक्वेंस में चल जाते हैं। ओके। ओके, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन या ये क्लियर हो चुका है? इज दिस क्लियर और एनी कंफ्यूजन है? इज दिस क्लियर और एनी कंफ्यूजन है? शायद से सी से सीखा या सीखो या पाइथन, एनी कोर्स और प्लेलिस्ट। पाइथन का कोर्स या प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, एंड अगर आपको क्लासरूम में सीखना है तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। सी अभी हम नहीं पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। इफ गुड, तो ये समझ में तो आ रहा है, ठीक है, कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल एंड आई विल आस्क यू कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, ओके। और या ये गलत है या सही है वो भी बताना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इफ ए इज इक्वल्स टू 10, सेम एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ, बी इज इक्वल्स टू 20, और मैं कहूँगा इफ ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड एल्स, ठीक है। ऐसे कुछ मैंने लिख दिया। इफ ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या आना चाहिए? int a is equal to 11। एनीवेज, इसका आंसर क्या आना चाहिए? एवरीवन गाइस, वी नीड टू, अच्छा, बहुत लोगों ने तो ऑलरेडी जवाब दे दिया भाई। ए एंड बी आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। भाई पब्लिक होशियार हो चुकी है, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, 7 करोड़ जीत चुके हो, बेहतरीन, ठीक है। तो समझ में तो आ गया है, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक एलिफ एलिफ ऐड करेंगे, हम कहेंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, if a is equals to b, if a is less than or equals to b, और यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि b is greater, ठीक है, b is greater। तो इसका आंसर बता दो क्विकली, क्विकली। b is greater ऑलरेडी, b is greater, ठीक है। क्वेश्चन से पहले आंसर, b is greater। एनीवन एल्स? b is greater, बहुत बढ़िया। You can also answer, guys, from YouTube people. You guys can also answer. B is greater, B is greater. बढ़िया, ठीक है। So let's try and understand. This is right, wrong. Okay, this is right or wrong. This is right or wrong. अभी क्या करते हैं, एक मैं आपको अब तक जो 3-4 चीजें सीखी है वो पकड़ के एक हम अ, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या एक एप्लीकेशन बनाते हैं। आई थिंक दिस द सेम एप्लीकेशन वी बिल्ट इन अवर मॉर्निंग बैच ऑल्सो, कि एक एप्लीकेशन है, आपको इंटरव्यूअर बोलेगा क्रिएट एन एप्लीकेशन वेयर इफ ए स्टूडेंट टाइप हिज मार्क, he should get the status, he should get the status of his रैंक, ठीक है, ऐसे कुछ। तो उन्होंने बोला कि रैंक्स कुछ इस तरीके से रहने चाहिए, एक होना चाहिए डिस्टिंक्शन, ठीक है, एक रहना चाहिए डिस्टिंक्शन, एक रहना चाहिए फर्स्ट क्लास, ठीक है, एक रहना चाहिए फर्स्ट क्लास, एक रहना चाहिए सेकंड क्लास, और एक रहना चाहिए फेल।
ठीक है, रहना चाहिए। तो ही विल ऑल्सो से कि जिनको 85% से अबव मार्क्स है, ठीक है, तो वो रहेंगे क्या, डिस्टिंक्शन। और यू कैन, वो ऐसे भी कहा कि वही टीचर ने ऐसे भी कहा जिनको 70 से लेकर 85 तक मार्क है, उनको दे दो आप फर्स्ट क्लास, ठीक है, उनको दे दो फर्स्ट क्लास। जिनको 65 से लेकर, या फिर हम डायरेक्टली कहते हैं कि 35 से लेकर 70 तक मार्क्स है, उनको दे दो सेकंड क्लास। एंड जो 30 के बिलो है, ठीक है, बिलो कैसे लिखते हैं आई डोंट नो, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, बिलो 35 आर फेल, ठीक है, 35 अबव आर डिस्टिंक्शन। ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे दिया मुझे इंटरव्यू में, ये पूरा ही प्रॉब्लम लिख दिया। अब तो पंगा हो गया भाई, ये कैसे करें, है ना। क्या कहते हैं इंटरव्यू में कि एक एप्लीकेशन बनाओ, एक ऐसा कोड लिखो जहां पर अगर स्टूडेंट उसका मार्क डाले, लेट से मेरे मार्क्स 87 है, अगर मैं 87 डाल दूं तो ये आंसर आना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर इन डिस्टिंक्शन। या मैं डाल दूं 34 तो वो बोल देना चाहिए फेल हो गए भाई आप, सॉरी, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्कोर, ठीक है, हम लिखेंगे स्कोर, ठीक है। और वो कैसे लेंगे, हम लिखेंगे एक इनपुट फंक्शन लेंगे, ठीक है, इनपुट फंक्शन लेंगे और उसके हम बोलेंगे प्लीज एंटर एंटर योर मार्क्स, ठीक है, प्लीज एंटर योर मार्क्स। सिंस दीज आर नंबर्स, मैं क्या करूंगा, इसको इंटीजर में डाल दूंगा, ओके, सिंस दीज आर माय नंबर्स, मैं इसको इंटीजर में डाल दूंगा और मैं इसको बस अभी चेक करता हूँ, ठीक है, कि क्या ये वर्क हो रहा है। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो इट विल आस्क फॉर माय मार्क्स, मैं बोल रहा हूँ 87, तो मुझे 87 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो मार्क्स तो आ गए है ना। अभी हम देखेंगे कि मुझे एप्लीकेशन कैसे बनाना है। तो आई विल यूज, चलो यहाँ पर बोलते इफ द score is greater than or equals to 85%, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ द स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85%, प्रिंट कर दो, क्या करना है प्रिंट, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस यू आर इन दिस डिस्टिंक्शन, ओके, हमने क्या कह दिया, कंग्रेचुलेशंस यू आर इन डिस्टिंक्शन, ओके। अगर मार्क्स 85 एंड अबव है तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर इन डिस्टिंक्शन। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर 85 86 डाल दूँ, तो मुझे क्या आना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर इन अ डिस्टिंक्शन। चलो यहाँ तक तो मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है, कहाँ तक रन हो रहा है, यहाँ तक। अभी मुझे ये तीन चीजें देखनी है, ठीक है, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ, ठीक है, एल्स वाला, एल्स, एल्स एल्स क्या रहेगा, प्रिंट आई एम सॉरी यू आर फेल्ड, ठीक है, आई एम सॉरी यू आर फेल्ड। तो मीनिंग, अगर मैं यहाँ इसको अभी रन कर दूं और मैं 84 भी डाल दूं, तो मैं क्या हो जाएगा, अरे ये तो फेल बोल रहा है, तो 84 तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, आई विल राइट एलिफ, एलिफ द स्कोर इज, अभी मैं पूरा ही लिख देता हूँ, द स्कोर इज इन बिटवीन लेट्स से लेस देन 70, ओके, ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 85, ठीक है, एंड यूज किया, एंड मतलब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ओके। और फिर अगर ये 70 एंड 85 के अंदर मार्क्स रहे तो क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑन फर्स्ट क्लास। और सिमिलरली यहाँ पर हम एलिफ यूज करेंगे, स्कोर अगर ग्रेटर देन 35 रहा, 35 से ज्यादा रहा एंड लेस देन 70 रहा, तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ओके, दिस विल गेट प्रिंटेड। सो नाउ माय एंटायर एप्लीकेशन इज रेडी। अगर मैं यहाँ पे जो भी मार्क्स डाल दूँ, लेट्स से आई टाइप 77, मुझे आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन आप फर्स्ट क्लास में हो, ठीक है, 77 फर्स्ट क्लास में आता है, राइट। अगर मैं ये मतलब प्लीज एंटर योर मार्क्स, अगर मैं कह दूँ कि भाई मेरे पास 33 मार्क्स आए थे, एंटर कर दूँ, इट विल से ओ आई एम सॉरी यू आर फेल्ड, ओके, सॉरी यू आर फेल्ड, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अगेन इफ आई ऐड, इसके बीच में अगर डाल दूँ कहीं पे, लेट्स से 65 डाल दूँ, ठीक है, so it will say congratulations you are in
second class. Okay, congratulations. You are in second class, right? Right. Uh, this is about time. Any questions? ठीक है. अब ये सीखने में आपको मजा आया? If you have you had fun? Fun. If you had fun, type fun in the comments. If you had fun, type fun in the comments. ओके. दो तीन लोगों को, चार पांच लोगों को फन, मजा तो आया. ठीक है. तो ऐसे ही हम कुछ आ, राहुल गांधी, अगर ये आपको मजा है तो ये मजा हम पूरी इंडिया को देंगे, दुनिया को देंगे. ठीक है. सो एनीवेज, so all right, then I think this is about time already. So quickly revise कर लेते हैं if and else statement. If and else statement में क्या है कि there are, यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से. इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में दो चीजें हैं, एक तो इफ है, एक तो एल्स है. ठीक है. इफ अकेला भी रहा तो दैट इज वैलिड, इफ एंड एल्स रहा तो भी वैलिड, इफ एल्स रहा तो भी वैलिड. ये कब रहेगा? जब आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो. ठीक है. इफ यू हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा था, यू ओनली हैव टू पॉसिबिलिटीज, राइट. लेट्स से यू हैव थर्ड पॉसिबिलिटी, फोर्थ पॉसिबिलिटी, फिफ्थ पॉसिबिलिटी. तो ये रहेगा हमारा इफ. ठीक है. ये लास्ट पॉसिबिलिटी रहेगा हमारा एल्स. बाकी सारे एलिफ रहेंगे, एलिफ. ठीक है. एलिफ रहेगा. ठीक है. एलिफ रहेंगे. ठीक है. इस तरीके से कि इफ दिस इज दिस तो ये करो, अदरवाइज ये करो, अदरवाइज ये करो, अदरवाइज ये करो, अदरवाइज ये करो. और अगर ये कुछ भी नहीं हो, इफ नथिंग आउट ऑफ दिस, अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो ये तो रहेगा. ठीक है. ये तो रहेगा. एंड इफ एल्स आपने लिखा नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. देयर विल बी नथिंग on the panel. ठीक है. There will be nothing. और these are some invalid formats that we have shown और seen. और फिर बस ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसको आप गो थ्रू करना. इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ रिवीजन का है नहीं. जो रिवीजन है वो आपको करना होगा. ठीक है. रिवीजन इज दैट you want to do yourself. ठीक है. You want to do yourself. So I'm just giving you one homework for tomorrow. कहाँ पर है यहाँ पर? होमवर्क. होमवर्क में क्या रहेगा? You have to write a code. Write a code to identify even and odd numbers. ठीक है. Write a code to identify even and odd numbers. तो मैं इसको हमारे ग्रुप में डाल देता हूँ, होमवर्क. ठीक है. इसको सब लोग कंप्लीट करो और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, या फिर कल आप यहाँ पर कमेंट्स में भी डाल सकते हो. ठीक है. कमेंट्स में भी डाल सकते हो. Someone say it would be helpful if you could share these notes to us. Okay. Notes कहाँ है? Yes, I will share these notes. Basically, this definitely this file and this file I will drop in the WhatsApp group. But we have created this Python for GitHub repository. तो आप इस यहाँ पर भी आकर प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पर आपको मिल जाएगा if and else statement कहीं पे. This I think, अरे नहीं भाई, नीचे है कहीं. This one, if and else statement. ठीक है. If and else statement. Or otherwise I will drop these files in the comment in the group as well. Okay. So if there is a doubt, any doubt, any question, open for any doubt or question, you have 1.5 minute. If you have any question, if you have, yes, Vivek, please let me know. Please tell me. हाँ. Yes, I can hear. हम्म. हाँ. Okay. Okay. Right. 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 You are right.
So I will just go as a newbie. I will go here and I will type Google Colab here. Okay. And once I go here, I will have to log in. ठीक है, अभी के लिए मैं कुछ ऐसा लॉगिन, कुछ ऐसे ही आएगा, सिमिलर आपको सबको कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो इसको हटा दो। ओके, देन यू जस्ट हैव टू ओपन दिस एंड यू हैव टू से ओपन अ नोटबुक इन ड्राइव। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है तो इट विल आस्क मी फॉर अ ड्राइव, लेकिन मैं बस ओपन नोटबुक कर कह रहा हूँ एंड आई विल ओपन एनी नोटबुक अभी के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, ओपन इन ड्राइव करना है, ठीक है, ओपन इन ड्राइव। So you will not, probably will not see this thing, ठीक है, you will probably see like this, मैं ये सब डिलीट कर दूँ, something like this you will get, ठीक है। इसको हटा दो। then you will see कि यहाँ पर कुछ अननेम है, आप you can type practicing, अरे अच्छा अभी के लिए मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, बट you can delete this, और यहाँ पर आप जो भी चाहिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन दीज आर सम कोड सेल्स जिसके अंदर आप कोड लिख सकते हो, दीज आर सम टेक्स्ट सेल्स जिसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो। अगर मैं हैश लगा दूं तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज लाइक टाइटल। ऐसे अगर लिख दूं, इसको सबसे पहले कनेक्ट कर देना, ठीक है, बट कनेक्शन के लिए अगेन गूगल अकाउंट लगेगा, ठीक है। ऐसे कुछ यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ओपन इन न्यू नोटबुक इन ड्राइव, ऐसे कर दिया मैंने। वंस यू लॉग इन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। हम्म, इसको आप एडिट कर सकते हो, जैसे प्रैक्टिस नोटबुक ऐसे लिख दिया, ठीक है, नोटबुक ऐसे लिख दिया। देन यू कैन, दीज आर योर कोड सेल्स, दीज आर योर टेक्स्ट सेल्स, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट के लिए ये पूरा इन्होंने दिया है, ऐसे टाइटल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने आप हैश आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो कि दिस इज माई टाइटल, ठीक है। अगर मैं डबल हैश करूँगा, इससे थोड़ा सा छोटा नॉर्मल छोटा टाइटल आ जाएगा, छोटा टाइटल, ठीक है। अगर मैं इससे और 3 कर दूँ, 3 4 कर दूँ, ठीक है, 4 कर दूँ तो सबसे छोटा, सबसे छोटा टाइप, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक है। इनकी साइज वेरीज विथ हैश, ठीक है, लाइक दिस। तो ये बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया। दीज आर योर कोड सेल्स, इसके अंदर कोड चलेगा, जैसे a इक्वल्स टू 100 और 21, a को प्रिंट कर दो तो इट विल प्रिंट a, ओके। सबसे पहले यस अगेन यू हैव टू कनेक्ट दिस कर्नल, इसको कर्नल कह लो। ये क्या है, इट इज अ रैम और डिस्क और मेमोरी गिवन बाय गूगल, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको 12 GB तक की मेमोरी दे रहा है, 160 GB तक की डिस्क दे रहा है। तो इसमें आप ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल्स या फिर एआई मॉडल्स आप रन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं दी है यहाँ पर, नॉर्मल सी मेमोरी दी है, छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन डू द नॉर्मल कोडिंग, नॉर्मल कोडिंग। जब बड़ी बड़ी कोडिंग हम करेंगे, जब एआई हम सीखेंगे, यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना भी। हाँ हाँ हाँ। यस यस यस, सो one notebook is what I can see. I can say yes. Let's say you got this Python or GitHub repository, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि आज का ही डाउनलोड करता, ठीक है, या लिस्ट फंक्शन 3 मैंने डाउनलोड करना है। तो आई विल जस्ट क्लिक हियर, ठीक है, डाउनलोड रॉ फाइल, ठीक है। वंस आई क्लिक हियर इट विल डाउनलोड फाइल। कुछ ऐसे पूछेगा ये, आपको बस लोकेशन दे देनी है, यू जस्ट हैव टू गिव द लोकेशन, okay, you just have to give the location. Once you get the location, okay, you will just have to, once you get the file, you just have to say file, upload notebook, okay. You will browse the notebook and you will just upload this one. Once the upload is done, once the upload is done, तो कुछ इस तरीके से आएगा, आप हर एक चीज रन कर सकते हो। इसको बस एक बार कनेक्ट कर लेना, ठीक है, और कैंसिल कर, अरे why this has manage the session, you have too many sessions। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बहुत सारे सेशंस भी रन नहीं करने देता है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम,
क्योंकि उनको मेमोरी के लिए कॉस्ट लगता है ना। तो यू कैन जस्ट रन दिस। अच्छा इसका आंसर कुछ ऐसे आ रहा है, अच्छा इसको देखता हूँ, अच्छा इसका कुछ ऐसे आ रहा है, अच्छा इसको देखता हूँ, अच्छा कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस जो भी मैंने ग्रुप पे डाले ना अब तक, तो उसको प्रैक्टिस कर लो। आई थिंक दीज लेक्चर 4 और 5 में आज फिर से डाल देता हूँ। इफ यू वांट टू गो अहेड, ठीक है, तो यू कैन चेक दिस। मैं इसका यूआरएल ऑलवेज आई ड्रॉप इन द ग्रुप, जैसे यहाँ पर मिल जाएगा। इफ यू क्लिक इट हियर यू विल गेट इट, ठीक है। और इसके रिलेटेड वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे? प्लेलिस्ट के अंदर। तो ऑल द लेक्चर्स आर हियर फ्रॉम जीरो टू हीरो वाला प्लेलिस्ट, ठीक है। 65 लेक्चर्स है। एंड यहाँ पर सेपरेटली हमारी इवनिंग बैच के लेक्चर्स है जो अब हम अभी पढ़ रहे हैं। पांडाज एंड नंपाई के अलग से, यहाँ पर डायरेक्टली मत चले जाना। इफ यू वांट टू गो फर्स्ट गो हियर और गो हियर, ठीक है। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। If there are no doubts other than this, okay, someone says, please mute yourself. Vivek, can you please also share? Can you please also share interview task, ask questions too? Yes, I will share. ये जब आगे जब हम सीखेंगे ना, तो मॉक इंटरव्यूज भी होंगे। आई विल कंडक्ट योर मॉक इंटरव्यूज। आई विल कॉल एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो आपके इंटरव्यूज लेंगे, ठीक है। तो आपके मॉक इंटरव्यू होंगे। आई विल ऑल्सो गिव यू क्वेश्चन सेट। आई हैव ऑल्सो गिवन द असाइनमेंट्स, ठीक है, और भी मैं असाइनमेंट्स दूंगा। असाइनमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये असाइनमेंट्स ना होकर ये आपकी इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसको ओपन कर लो। इसके बाहर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। दीज आर एवरीथिंग दैट यू नीड टू सॉल्व। ये सारे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन सीखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। दैट इज माय चैलेंज टू, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है। आई विल कीप ऑन एडिंग दीज क्वेश्चंस हियर, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन पे आएगी, और जैसे जैसे हम सीखते सीखते जाएंगे, आई विल कीप ऑन एडिंग सम असाइनमेंट्स हियर, ठीक है। Hello Yashika, I hope you are doing well. Any questions on YouTube? No questions. Okay. Yes, absolutely. I will. This is GitHub repo. Okay. All right. Some, if you have some more questions, I will give you 1 more minute. If you have questions, type questions. Okay. If you have questions, ये एक syllabus, I guess यही है, right? I am just adding this one syllabus का link मैं फिर से डाल रहा हूँ, ठीक है। syllabus का link। तो ये इतनी सारी चीजें हम सीखेंगे। अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? ऑल्सो रेफर दिस वन, ठीक है। ये है सिलेबस का लिंक। इसके अंदर जो भी चीजें हैं हम सीखेंगे। एआई, पाइथन, सारी चीजें सीखेंगे। जनरेटिव एआई और लाइक इट इज everywhere. All right, if you don't have any questions, okay, more 12 seconds. If you don't have any questions, type in the comments, guys. If you don't have any questions, type in the comments so that we can close the day. So that we can close the day. Okay, can we close the day? Will, cool. Everyone type in. Why we type in? It's an indication that you have understood everything. It's an indication that you have done something valuable today to win the day. It's an indication that you are doing something valuable for yourself as well. ठीक है, तो टाइप विन इन द कमेंट्स। और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर बोल रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। तो जो यूट्यूब पे देख रहे हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आई होप दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल सुबह 8 बजे हम सीखेंगे
Canada's for the morning batch जो नए हैं, you guys can join evening batch only at 9:30. Okay, so that is all for today. Have a great day and good night. See you tomorrow. See you tomorrow, guys.